Okay, thank you. I can see one person has joined. I'd request, first of all, our sincere apologies. बहुत हम माफ़ी चाहते हैं. आज का लाइव थोड़ा सा स्टार्ट करने में भी लेट हो गया एंड देन थोड़े बहुत टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से जो लिंक हमने क्रिएट किया था फॉर टुडेज TSL, that is the Sunday Night Live or the Sunday Live, that link has gone corrupt and we have had to restart the live as is. I request all our viewers to please switch on to this live and we can continue our discussion. Two people already listening. हम थोड़ी देर में अपना live शुरू करने वाले हैं. Those who are listening right now, I request you people to please mention where have you joined from, which city, state, country are you from. Please mention it in the live. कहाँ से आप हमें join कर रहे हो, mention करेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा. And we'll wait for at least a quorum of 5 people, if not more, if not less, if not more, and then we can get started with today's live. Please give me a sound check, please give me an audio and video check, and please confirm अगर आवाज़ और video clear है. Like I always keep telling, it's very hard for us to tell whether the audio and visuals are working fine or not. So we depend on you to confirm whether it's all working fine, and then we can get started with our live. Please mention where have you joined from. I can see there are 2 people already listening to us. I know a lot of people perhaps would have tried to join our Sunday night live link, but क्या करें, आज किस्मत ख़राब है, लिंक करप्ट हो गई और वो लिंक मैं बिल्कुल भी I was not able to revive the link and we had to step out of that link. Maybe I can just leave a message there so that everyone's aware कि हम यहाँ पे connect कर चुके हैं and the live is happening as usual. It's just that we are connecting on a different link right now. 3 people, thank you very much for taking time out on a Sunday को कौन political बातें करना चाहता है, but then when you people political तो नहीं कहूँगी, political, social और जो भी हमारे देश के concerns हैं, issues हैं, इस पे कौन Sunday को अपना दिन waste करेगा. As soon as I said that, I could see one person just left, but that's fine, we'll still continue क्योंकि हमें लगता है the objective of Coffee Commerce और कहानियाँ is to bring in that awareness. हम ये करते रहेंगे भले ही एक जन हमको सुने, 2 जने सुने या फिर the entire country is listening to us. So आज का टॉपिक थोड़ा सा uncomfortable तो होने वाला है, depending on the varied ideologies that each one of us have. India is a very diverse country, सबकी अपनी अपनी opinion है, अपने अपने preferences हैं, but we are going to discuss some of the critical matters. But we'll still give it another 2-3 minutes to get the quorum. जब तक quorum set नहीं होता, तब तक एक जो speaker है उसको एक rigor नहीं मिलता है to take it one notch beyond what we are just talking about. But 2 people आप जो भी सुन रहे हैं, thank you very much for joining. It'll be extremely helpful if you can let us know where have you joined us from. आपने हमें कहाँ से ज्वाइन किया है, अपने सिटी का नाम या फिर आप अगर इंडिया के बाहर कहीं बेस्ड हो, then mention the country that you have joined us from, the city that you have joined us from, and would like to see where all our audience are from. So please mention the city, state or country that you have joined us from. Madhya Pradesh. Okay, thank you very much. Divas, Madhya Pradesh. Say we have Rohit who has joined us. Thank you, Rohit, for joining. The other 2 people, I think they're not comfortable with revealing their location, and that's totally fine. We respect your privacy and will not try to interject with it too much. Okay, we'll give it another 2-3 minutes. Just confirm. I think with one of our audience responding to what I've just asked for, I think that in itself makes sense and it gives a clarity कि आप लोगों को मेरी आवाज़ clearly सुनाई दे रही है and there is no problem with the AV as of now. In about 2-3 minutes
from now, we'll start our live for the day. I can see another person has joined us just now. It'll be great if you can mention where you are, where have you joined us from, which state, which country, which city, and not that we are trying to, keep a record of anything, but it feels good to know where all our audience are from. जब आप लोग अलग अलग जगहों से ज्वाइन करते हो इस लाइव को, तो हमें भी अच्छा लगता है, बहुत सारा प्रोत्साहन मिलता है. भले ही एक लोग कोई एक जन हमारा लाइव सुने या 10 जन, हमें फ़र्क तो पड़ता है. द मोर द मेरियर एक्चुअली, बिकॉज वीड वांट आवर मैसेज, आवर वॉइस टू रीच आउट टू अ लॉट ऑफ पीपल. But that said, thank you very much for joining. Wow, I can see people are constantly joining in, and that's quite motivating. Thank you very much for joining on a Sunday. बहुत अच्छा लग रहा है देख के 5 जन सुन रहे हैं, एंड आई थिंक दैट्स अ लॉट फॉर अस. वी लाइक यू ऑल नो, और सम ऑफ यू जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, रेगुलर ऑडियंस हैं, रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, आपको पता ही होगा कि हमने ये संडे लाइव शुरू किया था लास्ट वीक से. लास्ट वीक वाज आवर फर्स्ट लाइव व्हेन वी पिक्ड अप ऑन वन ऑफ द क्रिटिकल टॉपिक्स दैट वी हैव, और सोशल इश्यूज दैट वी हैव इन आवर कंट्री, जो कि वुमेन्स सेफ्टी और वुमेन सेफ्टी पे प्राइमरीली और प्रिडोमिनेंटली उसी टॉपिक पे था. हमने काफ़ी सारा डिस्कशन किया, काफ़ी सारे लॉज के बारे में और बाय लॉज के बारे में डिस्कस किए, काफ़ी सारे केस स्टडीज़ देखे. आज का मुद्दा भी इट इज़ सेंटर्ड अराउंड समथिंग सिमिलर. इट इज़ ऑल्सो अ प्रिडोमिनेंट इशू दैट आवर कंट्री हैज़ राइट नाउ, of which, speaking of which, it brings us to our topic of the day. And tonight we will spend at least the remaining 31 minutes that we have at hand on looking at a question. Yeah, the question is, how do I put it across? It's not just about our country. It is not just about India, right? Now it can be seen across the globe. It's eventually becoming a global issue, and the concern is has the relationship between power, between dissent and democracy, is there a fundamental shift that we are seeing? Is there a shift in the paradigm? क्या हमें बहुत बड़ा बदलाव धीरे धीरे देखने को मिल रहा है? किस तरह से पावर, किस तरह से गवर्नमेंट या फिर पावर या और डिसेंट यानी ऑपोजिशन. बाय ऑपोजिशन आई डोंट मीन अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी. ऑपोजिशन कैन बी एनीथिंग दैट इज that sort of questions the status quo of our government, that questions the policies and the administration. जो हमारी है, जो संस्था है, जो गवर्नमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पे जो सवाल हम उठाते हैं, that is opposition for us. So the dissent refers to the opposition, और उसका हमारी डेमोक्रेसी पे क्या असर पड़ने वाला है या पड़ रहा है, आज हम उसी बात पे डिस्कस करेंगे. डिबेट ऑफ कोर्स इट इज ओपन, द फोरम इज ओपन फॉर डिबेट. वी इनकरेज यू टू वॉइस आउट अपने पॉइंट ऑफ व्यूज. प्लीज 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 मेंशन करिए इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज वी थ्राइव ऑन योर कमेंट्स. सो विदाउट फर्दर अडू, पहला सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा सवाल है, आज इस पूरे सेगमेंट को हम ब्रेक करेंगे इनटू मल्टीपल क्वेश्चंस, जो शायद हम सब अपने गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं, हम सब अपने एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना. एंड नॉट जस्ट अबाउट गवर्नमेंट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द गवर्नमेंट, इट इज़ अबाउट द लॉ मेकिंग बॉडीज, इट इज़ अबाउट द जुडिशरी, इट इज़ अबाउट द ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. किस तरह से हमें एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है. दिस शिफ्ट इन द सेंस, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, सो डेमोक्रेसी underlines or it underscores that it is by the people, for the people and of the people. लेकिन जब वही डेमोक्रेसी को हम या फिर अपने गवर्नमेंट को, जिनको हम इलेक्ट करके वहाँ तक लेके आते हैं, जब हम उनका जो उनके पॉलिसीज़ हैं या फिर उनके स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं, उन पे जब हम सवाल पूछने लगते हैं, when we ask for clarity, when we ask for clarification, or we ask questions to sort of gather information, जो कि हमारा at least fundamentally it is our right to information also, तब हमको
बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस क्यों देखने को मिल रहा है आजकल? इज इट वन ऑफ केस, या फिर ऐसे कई सारे केसेस हो चुकी हैं जिसको हम शायद अब तक ओवरलुक करते आए हैं? क्या हमने सवाल पूछना इसलिए बंद कर दिया है बिकॉज वी हैव सीन इमेंस पावर प्ले ड्यूरिंग, जब हम सवाल पूछते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पावर प्ले देखने को मिलता है, यहाँ तक कि हमने काफ़ी सारे हमारी जो the machinery that we have, the state machineries that we have, वो भी कभी कभी हमारे against use होने लगती है when we become or when we are the dissent. So speaking of the first question tonight that we are going to discuss or debate on is what are the independent, when I talk about matrices, independent matrices जो हैं globally, हम किस पायदान पे आते हैं? इंडिया की बात अगर हम करें, देन व्हाट डज द इंडिपेंडेंट मेट्रिक से अबाउट आवर कंट्री, राइट? और ये नंबर्स मेरे नहीं हैं. आई विश आई कुड शेयर द स्क्रीन. आई डोंट नो इफ आई हैव एन ऑप्शन. नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे स्क्रीन शेयर को दोबारा रीएस्टैब्लिश करने की. इनफैक्ट जो पहला वाला लिंक था उस पर ये सब कुछ था. अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू रीस्टार्ट द लाइव, सो आई हैव नॉट बीन एबल टू ब्रिंग इन दोज अरेंजमेंट्स, बट आई विल टॉक अबाउट इट शॉर्टली. नंबर्स की अगर हम बात करें, देन लीडिंग डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम इंडेक्सेस शो मेजरेबल डिटीरियोरेशन इन रीसेंट ईयर्स. वी आर पार्टली फ्री. हमें पार्टली फ्री का तकमा दिया गया है, जहां पे अगर हम ग्लोबल फ्रीडम स्कोर की बात करें, वी हैव अ स्कोर, वी एज एन इंडिया हैज अ स्कोर ऑफ 63 आउट ऑफ 100. और ये एक आंकड़ा जो आप सुन रहे हो, ये मेरी तरफ से नहीं है. इनफैक्ट देर इज ऑल्सो, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ जर्नल्स दैट आर देयर ऑनलाइन. मैं कोशिश करूंगी इस लाइव के बाद जब मैं इसको पब्लिश करूं, आई विल शेयर ऑल द नेसेसरी लिंक्स दैट यू ऑल कैन गो थ्रू एंड रीड देम, और आप जान पाओ कि किस तरह से हमें ग्लोबल रेटिंग में हम धीरे धीरे उस पायदान में एक एक साल दर साल नीचे चलते जा रहे हैं, नीचे होते जा रहे हैं. सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस. नाउ माय क्वेश्चंस टू, आई कैन सी 4 people listening to me already. My question is right back at you, audience. What is your take on when I talk about the the independent metric जो हमारे देश को दी गई है, yeah, 63 out of 100. What is your point of view? Do you mean the government at the center or are always state? Okay, no, I mean the government in general. Let's talk about the government in the center right now. We'll come to the state in a while. That's a good question, by the way. So if I talk about the Indian government, the Indian democracy, अगर मैं डेमोक्रेसी की बात करूं, इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसको जो रेटिंग दी गई है 63 out of 100 is an abysmal score, to be very honest. What is your point of view? Do you think we deserve this kind of a score? Do you agree or disagree with the statement that हमारा जो the way we have deteriorated over a period of years, मैं नहीं बताऊंगी 10 साल या 20 साल या 12 साल, but समझदार को इशारा ही काफी है. But talking about it, how do you think, or whether you align with the score, and if you don't, then what is your justification for not aligning with the score? Let's see some debate happening in the chat section. I'd encourage all the viewers to please take part. Bring in your point of views. You can talk from a state level, you can talk from a center level, you can talk about how what happens at a state has a rippling effect on the center. So over to you all. Will not invest much time. 1-2 minute का हम टाइम देते हैं for a discussion, and then we will move into the next or the continuity on this particular discussion. Once again, I'll repeat, जो global freedom है, right? Our scoring is 63 out of 100, and this is by freedomhouse.org. इनका एक जर्नल निकला था जिसके मुताबिक ग्लोबल फ्रीडम इंडिया हैज स्कोर्ड 63 out of 100, which means it is partly free in a democracy, mother of democracy, mind you. And इंटरनेट फ्रीडम की अगर हम बात करें, वी आर एट अ 51. द स्कोर इज 51 out of 100, which is also partly free. So let's have a little more deliberation on this. I would like
to see some kind of conversation happening in the chat. I wish I could invite you people to have a conversation with me. Maybe eventually, if any one of you is interested to join our Sunday live, as we are becoming robot nowadays, or we cannot think critically. Okay. Why do you think we can't think critically? We can think critically. I mean, as human beings, we have that, we are blessed with the human mind, human brain, yeah, which is capable of thinking critically. Do you think there is a lot of imposition of restrictions, curbs, or fear that limits our critical thinking? I'm not denying. I just saw one of my viewers right now, Rohit, who said that we don't think critically. So I'm not denying to that fact. It is a fact. We don't think critically. But is it out of fear? Is it that we have stopped caring about what is going around us? As long as I'm fine, I don't care what happens to the rest of the country. Is that the mindset that we have gotten into? Or by seeing जो हमने अब तक देखा है कि अगर we are opposing to the state or the center, तो जिस तरह का repercussion देखने को मिलता है, has that somewhere instilled fear in the citizens of this country कि हम सवाल पूछने से अब डरने लगे हैं, which is again it is a threat to democracy. So what's your take on that? I'll quickly go back to the live just to see अगर कोई interactions हो रही हैं वहाँ पे या नहीं. Okay, I don't see a lot of responses coming in. ठीक है, let's move on a little bit. Maybe धीरे धीरे you all will also take some time to warm up in the discussion, और धीरे धीरे आप भी इसमें participate करने लगोगे. So this is the first one. The first question that we are answering in tonight's live is, like I said, it is about power, dissent and democracy in India. So इसमें the first one is what the independent matrices say. We have understood the metrics, right? Global पायदान में हमारी scoring धीरे धीरे कम होती जा रही है, नीचे होती जा रही है, and that is an alarming situation that the country is getting into. Hello, एक गुंचा रोहित Vishwakaram and Pankaj Pal, thank you so much. You all are my loyal audience. हर Sunday live में भले ही कोई और join ना करे आप लोग जरूर करते हैं, and I thank you all with folded hands. Let's continue into the discussion. Let's get a little deeper into the discussion. The second question tonight that we want to answer is the mechanisms. ओके अभी हमने बात की कि किस तरह से किसी ने कहा कि ओके क्रिटिकल थिंकिंग हमको के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं है. द अदर क्वेश्चन दैट आई वाज आई जस्ट सॉ इन द इंटरेक्शन इज कि जब हम बात करते हैं फ्रीडम की, आर वी टॉकिंग एट अ स्टेट लेवल और अ सेंट्रल लेवल? वेल, स्टेट लेवल पे भी फ्रीडम कर्ब हो रही है. Perhaps it is not as vividly visible like it is in the center, but इसका रिपल इफेक्ट स्टेट में जो भी होता है उसका एक रिपल इफेक्ट सेंटर में भी होता है, एंड वी नीड टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट. मूविंग ऑन, मैकेनिज्म, हाउ पावर इज बीइंग एक्सरसाइज्ड. पावर की अगर हम बात करें, देन वी हैव 2 or 3 मशीनरीज, 2 or 3 टूल्स विद इन इट, जिसके बारे में मैं बात करूंगी लेकिन थोड़ी देर में. स्पीकिंग ऑफ पावर बीइंग एक्सरसाइज्ड, और जो सेंटर ड्रिवन पावर है या स्टेट ड्रिवन पावर है, वो जब सिटीजन्स पे एक्सरसाइज करने लगती है गवर्नमेंट, राइट, अगेंस्ट देम बिकॉज दे हैव अ वॉइस ऑफ देयर ओन, बिकॉज दे आर क्वेश्चनिंग द स्टेट और द सेंटर, देन इट बिकम्स अ चैलेंज, राइट. तो इसके बारे में लेट्स डिग अ लिटिल मोर डीपर. क्या क्या हमारे पास मशीनरीज हैं? सबसे पहला, फर्स्ट वन दैट वी हैव इज लॉ एंड सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स. लॉ एंड सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स के अगर मैं बारे में बात करूं, देन हमने एटलीस्ट 2019 से 2023-24 तक देख लिया है कि यूएपीए को कितना अग्रेसिवली यूज किया गया है. यूएपीए, आई एम श्योर यू ऑल नो, इट स्टैंड्स फॉर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट. तो यूएपीए को बहुत ही अग्रेसिवली यूज किया गया है, और इसको सब्सटैंशिएट करती है हमारी एमएचए यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की
data. Let me read out the data to you that will perhaps give you some goosebumps. जब मैं इस डेटा को देख रही थी, and this is from 2019 to 2023 mind you, इसके ऊपर आर्टिकल मिल जाएगा आपको, द वायर का एक डिटेल्ड आर्टिकल है विच ऑल्सो रेजोनेट्स विद द डेटा दैट्स बीन पब्लिश्ड बाय MHA. अगर मैं इस डेटा को सब्सटैंशिएट इसको कंसोलिडेट करके देखूं, 10,000 के ऊपर अरेस्ट्स हो चुकी हैं इन from 2019 से 2023 तक. This is the data only till 2023 mind you. There have been more than 10,000 arrests. इस अरेस्ट में कुछ प्रोमिनेंट नाम भी शामिल हैं जिसके बारे में मैं बताऊंगी थोड़ी देर में. बट लेट मी टेल यू हाउ द आंकड़ा, कैसे वो आंकड़ा साल दर साल बढ़ता ही गया. लेट मी टॉक अबाउट 2019 का कंसोलिडेटेड नंबर अगर मैं देखूं, द टैलीड नंबर ऑफ persons arrested under UAPA of all the states. I'm talking about all the states and union territories that we have. कुल मिला के 36. इसका टोटल आंकड़ा था 19,048, close to 2,000. Okay. इसमें convictions हुए, मतलब 19,000, हमारे 19,000 plus were arrested. People were arrested under UAPA. उसमें से convictions हुए 34. ओके, मूविंग ऑन टू 2022 डेटा, जहां पे हमें थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला. हालांकि वो 1,000 के ऊपर तब भी था, लेकिन द नंबर्स हैड रिड्यूस्ड टू 1,321. बट यहाँ पे अरेस्ट के बाद कन्विक्शन का रेट बढ़ गया. 80 पीपल वर कन्विक्टेड अंडर UAPA. 2021 में इट अगेन वेंट अप टू 1,621 विथ 62 कन्विक्शंस. 22 में द नंबर जंप्ड टू 2,636 arrests and 41 convictions. 23 के आते आते the number went very close to 2,914 with 100 plus 118 to be precise convictions. इसमें काफी सारे प्रोमिनेंट और यूएपीए की धारा किन किन केसेस में लगी है अब तक आई एम श्योर आप सब जानते हैं, लेकिन कुछ प्रोमिनेंट नाम एक्सक्यूज मी जो मैंने भी लिख के रखा है, उनमें से है जर्नलिस्ट सिद्दीकी कप्पन का नाम. देन वी हैव ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट खुर्रम परवेज, जिनको 2021 में अरेस्ट किया गया अंडर UAPA. देन ट्राइबल राइट एक्टिविस्ट स्टैन स्वामी, जिनको अरेस्ट किया जाता है अंडर UAPA चार्जेस इन 2021, और 2021 में ही वाइल बीइंग इन प्रिजन उनकी मौत हो जाती है. द सैडेस्ट पार्ट इज स्टैन स्वामी वाज ओवर 80 years. जब वो जेल में थे, ऑफ कोर्स विथ एज यू हैव अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स, राइट. आई अंडरस्टैंड दैट ही वाज पुट बिहाइंड द बार्स ऑन द चार्जेस ऑफ UAPA. हालांकि उसके पीछे का रीजन क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, वेल आई ट्राइड कवरिंग इट इन वन ऑफ द स्टोरीज इन वेरी ब्रीफली. एक मैंने शॉर्ट्स डाला था, बट आई विल ट्राई टू ब्रिंग यू द एंटायर स्टोरी ऑफ स्टैन स्वामी. तो स्टैन स्वामी को अरेस्ट किया जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है, और जेल में रहते वक्त भी स्टैन स्वामी वाज कैरिंग आउट हिज एक्टिविज्म. वो जो वहाँ के प्रिजनर्स थे उनके वेलफेयर के लिए लड़ रहे थे. सो ही वाज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. चलो ठीक है, उन पे आपने UAPA लगा दिया, अंदर कर दिया, बिकॉज आपको लगा कि ही इज़ अ थ्रेट टू आवर कंट्री. एक 80 साल का बुजुर्ग, आपको हमारे देश के लिए लगा कि ही इज़ अ थ्रेट एंड ही इज़ पोलराइजिंग पीपल अगेंस्ट द द गवर्नमेंट ऑफ द सेंटर. फेयर इनफ, मतलब आवाज उठाना इज बीइंग पोलराइज्ड. एनीवे, तो ही डाइड इन प्रिजन. उन्होंने मांग की थी, बिकॉज ही वॉज अनवेल, ही हैड रिक्वेस्टेड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसका उनको फुल फ्लेजेड मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी गई. ही वॉज केप्ट डिप्राइव्ड एंड देन ही पासेस अवे. सो दिस इज द सैड स्टेट ऑफ आवर कंट्री के आप किसी को आप ये नहीं देखते हो, बिकॉज यू थिंक दैट द पर्सन इज अ थ्रेट टू अवर कंट्री. आई विल कम टू सम मोर इन अ वाइल. आई एम श्योर द यंगस्टर्स, आप में से अगर कोई recent generation का है, you'll be able to relate to this even more. But coming back to Stan Swami, I think it was his human rights. उसका violation था, absolute violation. Even if you're a prisoner, you have the right to life. तो उसका violation था, and nobody deserves to die like that. Moving on. इसके अलावा कुछ prominent नाम जो शायद आपने पहले सुना हो ना हो, अब तो सबने सुना है. कुछ नाम मैं लेने वाली हूँ, controversial of course, according to some. उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा एंड मीरन हैदर.
इन लोगों का नाम आई एम श्योर थोड़ा बहुत आप सबने सुना है, इनका नाम नहीं सुना है तो टुकड़े टुकड़े गैंग तो आपने जरूर सुना होगा। तो स्टूडेंट एक्टिविस्ट को जेल में डाल दिया जाता है, और उमर खालिद को किन बेसिस पे जेल पे डाल दिया गया था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे किसी और एपिसोड में। But yeah, you raise your voice against government, and then there are charges against you, which is there to put you behind the bars for God knows how many years. अब इस पर्टिकुलर केस में जहाँ पे उमर खालिद और गुलफिशा एंड देन मीरन एंड शर्जिल वर अरेस्टेड, इनमें से बाकियों को बेल मिल गया. We all know that they were released on bail. Thank you, Rohit. They were released on bail, but उमर खालिद और शर्जिल इमाम को अभी भी बेल नहीं मिली है. बेल तो छोड़ दो, उनका ट्रायल भी अभी तक नहीं हुआ है, एंड अंटिल नेक्स्ट ईयर दे कैन नॉट इवन अप्लाई फॉर बेल. So yeah, that is where we are. The next tool, let me talk about the next tool. The next interesting tool that we, अच्छा, tool पे जाने से पहले I'd like to take a quick poll from our audience. Yeah. No, I'm not going to ask what do you think about these people being arrested and put behind the bars. Like I said, each one of you has the right to have your own political view, own opinion. But what is wrong is wrong. I think we should stand up against that collectively, and we should raise our voice against anything that we feel is equivalent to injustice. ठीक उसी तरह जिस तरह हमने recently the उन्नाव केस में किया. उन्नाव केस में हमको now there are, of course, there are other conspiracy theories around it, and I sort of align to that also, जिसके बारे में अगर मैं बात करने जाऊंगी तो बहुत ज़्यादा controversial हो जाएगा. But जिस तरह से the convict कुलदीप सिंगर को पहले तो बेल मिलती है, फिर उसको अंदर डाल देते हैं, that was a fair deal. That was a great example set by our judiciary body. ये उन्होंने दोबारा reestablish कर दिया that we can have faith in our judiciary. But on the contrary, I'm sure you all know, there is the couple of convicts who are now out on bail. One is Ram Rahim, जिनको parole पे छोड़ दिया गया है because he's celebrating his birthday, and we have Asaram Bapu, who's also out on bail. These two are convicted criminals. इन पे बहुत serious charges हैं. At least Ram Rahim पे charges है of rape and murder. Despite of that, this is his, I guess, 15th parole or 15th bail, जिस basis पे एक convicted criminal को दोबारा कोर्ट बरी कर देती है 40 दिनों के लिए. My question to you all who are listening to me right now is, do you think this also somewhere puts a very fundamental threat, fundamental question on tonight's discussion? Neta want power, they don't take responsibility. Somewhere we are to be blamed for it, because जब से हमने सवाल पूछना छोड़ दिया, you can't blame the neta, because ultimately अगर मैं constitutionally बात करूं, then we are the one who elect them. हालांकि अभी election का भी dynamics जो है वो change हो रहा है. SIR drills जो अचानक SIR drill is a very good thing, and mind you ये TN session ने शुरू किया था, वो लेके आए थे long ago, right? But उसके बाद SIR drills were happening in fragmented manners. कभी होता था, कभी नहीं होता था. Ideally there is a schedule जिसको करना चाहिए हर election से पहले. You should have the SIR drill done so that your electoral roll is clean. You know that the list does not have any duplicacy या फिर कोई anomaly उसमें नहीं है. That's the primary reason. But अभी का जो सीन है, we have recently seen what happened in West Bengal. I'm sure most of you must be aware किस तरह से वहाँ पे एक ED ने एक रेड किया to procure the SIR details, and that's I don't know if I can call it unlawful, but then गलतियां दोनों तरफ से हैं. The way the Chief Minister of Bengal reacted to the situation, it can lead to litigation, because she was actually interfering in a raid that was conducted by ED. Right? It is unlawful. To an extent, it is unlawful. But
बात वहां तक क्यों पहुंची दैट अ सीएम हैड टू इंटरवीन, इंटरजेक्ट इन अ रेड, एंड शी हैड टू कम एंड literally confiscate some of the things, take it in her custody and immediately walk out of there. उसके बाद जो प्रोटेस्ट हुआ, जो सीन्स देखने को मिले हमें अमित शाह के घर के बाहर, आई एम श्योर वी ऑल हैव सीन दोस वीडियोस. Coming back to the question once again, what is your take? What do you think? मैंने आपको कई सारे एग्जांपल्स दे दिए. मैंने SIR का किस तरह से मैनिपुलेशन हो रहा है, मिसयूज में अभी भी मैं आई एम नॉट यूजिंग, आई एम बीइंग वेरी केयरफुल अबाउट माय वर्ड्स दैट आई एम चूजिंग टुनाइट, राइट. आई डोंट वांट टू रफल एनीबडी सेंटिमेंट, बट जिस तरह से SIR का मैनिपुलेशन हम देख रहे हैं, number one. Number two, do you think it is also an encroachment on our right to vote? कि हम किसको वोट देके लेके आ रहे हैं पावर में, वो कंट्रोल भी हमसे या फिर वो राइट भी हमसे धीरे धीरे छीना जा रहा है. What is your take? I'd like to see 1 or 2 responses. हालांकि 4 लोग सुन रहे हैं, but let's see what our audience also think about it. I'll spare maybe 30 seconds or so on this question. I'll stay for 30 seconds on this and we'll move on. We are already 31 minutes into the live. But yeah, we have a lot to discuss tonight. Okay, I'm not sure if there are any responses. Let me एक बार chat में भी देख लेती हूँ. They don't take responsibility. So Rohit, I'll take a reference to your question and let me draw a parallel to what you've just put here. Right? Neta want power, they don't take responsibility. Let's, before we allege them that they don't take responsibilities, let's ask ourselves, हमने कितनी बार उनको सवाल के कटघरे में लाके खड़ा किया है? After we have voted them, how many times have we questioned them? Taking the case of Indore, अभी जो रिसेंटली इंदौर में हुआ द वाटर क्राइसिस, स्पीकिंग ऑफ इट, CAG ने 2019 में डेटा रिलीज कर दिया था जिसमें क्लियरली मेंशन था कि भोपाल और इंदौर के ड्रिंकिंग वाटर में वहां पे they had found the bacteria, the lethal bacteria E. coli, which was there, right? The report had also said that the water is highly contaminated and not fit for drinking. उसके बावजूद लोगों ने कितनी आवाज उठाई, कितने पिटिशंस फाइल हुए टू रेज द वॉइस एंड आस्क क्वेश्चंस टू द गवर्नमेंट कि भाई CAG का रिपोर्ट आप किस तरह से निग्लेक्ट कर सकते हो. $200 का जो सैंक्शन आया था इन 2008, आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बट 2004 या 2008 में जो $200 का जो सैंक्शन आया था, 200 बिलियन बाय द वे का जो सैंक्शन आया था टू ट्रीट द ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, क्योंकि सिर्फ इंदौर और भोपाल अफेक्टेड नहीं थे, देयर आर 4 cities that were affected. हालांकि ये नंबर अब बढ़ते बढ़ते इट इज अक्रॉस द कंट्री, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, उसके बारे में थोड़ा बोलूंगी थोड़ी देर में. बट स्पीकिंग ऑफ इंदौर अलोन, कितनी बार हम लोगों ने सवाल उठाया है? Or have we not asked questions? Because I don't live in Madhya Pradesh. Indore is not the place where I belong. मेरे घर का पानी साफ आ रहा है, मेरे घर में वाटर प्यूरिफायर है, तो I am safe. That's the mindset. Either that's the mindset that we have gotten into कि मुझे फर्क नहीं पड़ता. साल के महीने के एंड में मेरी सैलरी आ रही है, मेरी जिंदगी में सब चंगा सी, एंड आई डोंट गिव 2 hoots अबाउट रास्ते में कोई मर रहा है, कि कोई पानी से मर रहा है, कोई दवाई से मर रहा है. I don't give a I don't care about it. So I don't care about it. Is it the I don't care about it mentality, mindset? Or are we so scared to ask questions? क्योंकि पिछले I think since 2014 से हमने जो देखा है, we are now little conscious about asking questions. It's something to deliberate on. इसके बारे में सोचिए. I'm not asking you to give me answers. It is not to put you in the spot as my audience and make you feel bad about it. But it indeed is an effort to collectively feel bad about it. क्योंकि हमने कुछ नहीं किया है. अभी इंदौर का केस हो गया, we are silent. Let me give you the data. अगर आपने मेरा video, there is a detailed video by the way that I have made on the Indore water contamination.
जहां पे मैंने बताया भी है कि ये एक स्टेट का या एक सिटी का कंसर्न नहीं है। दिल्ली के वाटर में यूरेनियम है, पंजाब के वाटर में यूरेनियम है, तेलंगाना का जो पानी है वो भी कंटैमिनेट हो चुका है, बैंगलोर में पानी कंटैमिनेट हो चुका है। 70% ऑफ द कंट्रीज ड्रिंकिंग वाटर इज कंटैमिनेटेड टुडे, बट वी डू नॉट केयर, क्योंकि मेरे घर में वाटर प्यूरिफायर है, मेरा पानी साफ है, मैं छान के पी लूंगी, मैं उबाल के पी लूंगी, बट मैं आवाज नहीं उठाऊंगी। कब तक नहीं उठाओगे आप आवाज? आज आपकी बारी नहीं है, कल हो सकती है। So what have you done about it? What are you thinking to do about it is something that we need to critically think about as the citizens of this country. I think I've spent a lot of time in highlighting the problems. They don't know where to ask. Okay. I will. You can ask questions, right? हालांकि RTI पे अभी बहुत ज़्यादा, RTI तो खैर अभी उसको ऑलमोस्ट डिसॉल्व ही कर दिया गया है। देयर इज अ डिफरेंट रूल दैट हैज ऑलरेडी कम इनटू प्लेस जो आपके RTI को कंट्रोल करती है कि आप कितना सवाल पूछ सकते हो, कितना इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो। दैट्स ऑल। ये कहीं तक हम काफ़ी हद तक हमने ये तो करने दिया है, एक दिन में नहीं हुआ ये। व्हाई हैज इट हैपेंड इन जस्ट द रिसेंट टाइम? 2014 से पहले तक हमारे पास RTI था, राइट से 2014 के बाद भी वी हैड एक्सेस टू RTI एज आवर सोर्स ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। लेकिन ऑफ रिसेंटली उस पे कर्व्स ला दिए गए हैं। व्हाई? कितनी बार हमने सवाल पूछा कि भाई हाउ कैन यू रिस्ट्रिक्ट माई राइट टू इंफॉर्मेशन? वी हैवंट आस्क्ड। सो ब्लेमिंग द गवर्नमेंट is a safe way, is an easy way, but somewhere we also need to take responsibility of not asking questions in time. That is also something that we are accountable for as the citizens of this country and as legitimate voting citizens of this country. हम जब वोट देते हैं, इसी भरोसे वोट देते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करेगी। अब जब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, तब आप क्या कर रहे हो? Okay, let's move on. The next machinery that we have with us is digital and communication controls. Digital and communication control के बारे में अगर मैं बात करूं, इसका तो data elaborate है. I wish I could show you. I wish I could just turn the camera and show you this. But this is an interesting data set, by the way. मैं ये link भी share करूंगी in the chat, in our live खत्म होने के बाद चैट सेक्शन में। I'll give all the links description में। Please इन links को open करके पढ़िए। The problem is मैं एक अकेले यूट्यूबर नहीं हूं who's raising voice. Okay, there are many, several, and there are big ones also. People whom I admire, journalists whom I admire, वो भी हैं, इसी फील्ड में हैं, वो भी सवाल पूछ रहे हैं. But when I compare the views, when I compare the views. I somewhere it feels I feel disheartened to see कि भाई एक मूवी का कोई ट्रेलर आता है, वहाँ मिलियंस में व्यूज आती हैं, ठीक है, या फिर कोई डांस का रील है, वहाँ पे मिलियंस में, एंड नो डिसरिस्पेक्ट, दैट इज ऑल्सो एन आर्ट, या फिर एंटरटेनमेंट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ आई वुड से अ फॉर्म ऑफ अवेयरनेस, लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा व्यूज आती हैं। बट जब हम जैसे लोग वॉइस रेज करते हैं तो हमको ज़्यादा टर्नओवर देखने को नहीं मिलता। ज़्यादा लोग ना तो हमारी वीडियोस देखना पसंद करते हैं, वीडियोस को बोरिंग लगने लगता है। बोरिंग लगना भी चाहिए आप लोगों को हमारी वीडियोस, वही तो हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि आप हमारे वीडियोस को यू फाइंड देम बोरिंग, यू फाइंड देम अनएंटरटेनिंग, यू फाइंड देम प्रोपेगेंडाइश, एंड यू क्विकली स्विच टू द नेक्स्ट रील। दैट इज व्हाट आवर गवर्नमेंट वांट्स एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी आर वेरी हैप्पीली फुलफिलिंग। तो इसके बाद अगर हम गवर्नमेंट को अकाउंटेबल सिर्फ करें और ये बोले कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, देन आई थिंक इट्स रॉन्ग। हमने भी कुछ भी नहीं किया है, राइट? दिल्ली में जब एयर पोल्यूशन, हालांकि अभी भी है, बट दिल्ली का जब एयर पोल्यूशन 1000 के आसपास चला गया था, जब प्रोटेस्ट हो रहा था in front of India Gate, हम सब ने देखा था the way the protesters were treated. उन लोगों को उन लोगों को the detention van comes और सब लोग बच्चों के साथ सबको उठा के वैन में डाल के ले जाती है, पुलिस डिसबर्स कर देती है क्राउड को। Why? Because they were protesting against the Delhi's rising AQI.
अरे एम्स बोल रहा है हर एक बच्चा जो पैदा हो रहा है दिल्ली में उसकी उम्र कम से कम 7 to 8 years घट रही है बिकॉज द एयर इज सो हाईली पोल्यूटेड इन दिल्ली. एंड मतलब we have become a global example and that's a shame. That is an absolute shame. बाकी कंट्रीज हमारी कंट्री के AQI को एज एन एग्जाम्पल दे के ये बोल रही है कि वी शुड टेक मेजर्स एंड इंश्योर दैट हमारी कंट्री स्टेट में ना जाए. व्हाट अ शेम. हाउ मेनी क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड. पार्लियामेंट में वंदे मातरम पे डिस्कशन होता है, एक पूरा सेशन उस पे होता है. हमारे टैक्स पेयर्स का काफी सारा पैसा भी उसमें लगता है, बट ऐसे क्रिटिकल इश्यूज पे कोई सवाल नहीं उठाए जाते. ऑपोजिशन अगर पूछने की कोशिश भी करती है तो इन द मोस्ट फ्रिवलस मैनर वो पूछने की कोशिश करती है. दे कैन नॉट दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इन रेजिंग द क्वेश्चंस. और रूलिंग पार्टी तो है ही, वो अपने जस्टिफिकेशंस देने में माहिर है. जुमलों में तो हमारी सरकार माहिर है, क्या ही बोले उसके बारे में. बट या दैट्स अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड आई डोंट नो हाउ मच वी कैन रियली डील विद इट. कब तक इसके साथ हम पुट अप कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन. आई एम सो सॉरी इफ आई एम मेकिंग माई व्यूअर्स अपसेट. 6 लोग सुन रहे थे, उसमें से 3 लोग अभी है, बट इट्स ओके, विल कंटिन्यू. I think I'm hurting a lot of political sentiments tonight, which is fine. Raising voice is also important. Quickly moving on, I was talking about the next tool that we have, digital. Vande Mataram is important, and mind you, it's just the national song, it's not even the national anthem. Yeah, okay. Moving on. So total number of digital and control. अच्छा, digital and communication पे जो curves लगी थी, अगर मैं उसका आंकड़ा देखूं, and I wish, like I was saying, I wish I could show you. Total shutdowns are 904. ये this data is still, I think 2025 तक का ये data है, and this is from Internet Shutdown. Internetshutdown.in. That's the website. If you want, you can check it out पैरेलली along with me. यहाँ पे जो सबसे लंबा शटडाउन है, जो सबसे ज्यादा टाइम पीरियड के लिए हुआ था, दैट वाज, लेट मी गिव यू द नंबर ऑफ डेज, 552 days. Any guesses which state, which country was it for? Any guesses? Take a wild guess. 552 days of internet shutdown. किस स्टेट में हुआ था? The answer is pretty easy. In the state of Jammu and Kashmir. This was जब Article 370 को of the Constitution उसको जब abrogate किया गया, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में 552 days. सॉरी, माई हिंदी में नंबर्स का मेरा वो थोड़ा कमज़ोर है, सो आई विल कीप माई नंबर्स इन इंग्लिश. काइंडली बेयर विथ मी. सो 552 days के लिए, एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे इंटरनेट सस्पेंशन, कंप्लीट इंटरनेट सस्पेंशन किसी जगह पे हमको देखने को मिला था. आई कांट कॉल इट अ स्टेट पे से. जम्मू एंड कश्मीर में ये था, और उसका रिपल इफेक्ट भी, एंड दिस वाज इन फ्रॉम 2019, अगस्त 2019 से फेब 2021 तक ये देखने को मिला था. एंड इसका रिपल इफेक्ट उस वक्त लद्दाख में भी देखने को मिला था. फॉर 145 days लद्दाख में भी इंटरनेट डिसकंटिन्यूटी था ड्यूरिंग दैट पीरियड. सो दिस वाज फ्रॉम अगस्त 2019 टू December 27, 2019. दैट्स द ड्यूरेशन. These are some of the longest. इसके अलावा मणिपुर में जब अनरेस्ट हुआ, मणिपुर में इंटरनेट सस्पेंडेड था 200 days. दैट इज फ्रॉम April 27, 2023 से लेके October 18 2023 तक मणिपुर में बिकॉज ऑफ द अनरेस्ट वहाँ पे भी एब्सोल्यूट इंटरनेट शटडाउन था. सो this is also one of the machinery, one of the tools that the government is using against dissent. Right? और ये democracy का part है, by the way. Right? You talk about media, you talk about journalism, you talk about the 4 pillars of journalism, basically, out of which media is also one of them, which is also a critical machinery of our country. वहाँ पे किस तरह की curves लगाई गई, मैं ये भी आपको जरा बोल देती हूँ. If I talk about
मीडिया, एनजीओ एंड सिविल सोसाइटीज। एनजीओ के बारे में मैं अगर बात करूं, या फिर एनजीओ को छोड़ते हैं, लेट्स जस्ट गो टू द मीडिया पार्ट। यहाँ पे भी हमारा रैंकिंग बहुत ही कम है, राइट? सो स्पीकिंग ऑफ मीडिया फ्रीडम, या वी आर एट अ 151, हमारी रैंकिंग 151 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। अगेन नीचे की तरफ, India is called the mother of democracy. Or this is not my version, by the way. I'm sure you all know whose version it is. It is the version of our supreme leader. कि India is the mother of democracy. लेकिन mother of democracy में fourth pillar of the democracy, which is media, उसकी फ्रीडम को जब ग्लोबली कंपेयर किया जाता है तो इंडिया 151 पायदान पे आती है आउट ऑफ 180 कंट्रीज. सो दैट्स द काइंड ऑफ फ्रीडम मीडिया हैज. एनजीओ के बारे में अगर हम बात करें तो एफसीआरए अमेंडमेंट जो हुआ था, एंड देयर इज अ वेबसाइट बाय द वे, ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है, यू ऑल कैन ट्राई एक्सेसिंग दिस वेबसाइट. इट्स कॉल्ड fcraonline.nic.in. ओके, इसमें अगर आप जाओगे, जाने के बाद वहां पे टैब्स हैं. टैब्स में आप देखो एक्ट एंड रूल्स / रेगुलेशन. वहां पे जब हवर करोगे आपको मिलेगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, विच इज एफसीआरए, विच इज एफसीआरए. उसका अमेंडमेंट अगर आप देखो, विच इज द अमेंडमेंट टू द एक्ट विच हैपेंड 2020 में, एफसीआरए का जो अमेंडमेंट हुआ था उस पर भी काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस रेगुलेशंस लग गए. इसका जीता जागता सबूत है आर एनवायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट जो अभी एनएसए के चार्जेस में जेल में हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट सोनम वांगचुक. उनके इंस्टीट्यूशन की फंडिंग को रोक दी गई because of course they tagged him as a national threat to India's sovereignty and security. and ऐसे लगा के उनको किन हालातों में उनको अंदर कर लिया गया, the world knows about it. लेकिन उनके जो इंस्टीट्यूशंस थे वहां पे जो फंडिंग आती थी उस पे भी कर्ब्स लगा दिए गए, और उस पे भी ये कहा गया कि वो फॉरेन फंडिंग आती थी बिकॉज एंड इट वाज ऑल फॉरेन फंडेड, एंड इट वाज ऑल व्हाटएवर वाज बीइंग डन वाज अगेंस्ट इंडिया सॉवरेनिटी. हालांकि वहाँ बच्चे पढ़ते थे, वहाँ पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होती थी. सोनम वांगचुक के जितने पेटेंट्स हैं, आई मीन द मैन हु इज रिकग्नाइज्ड ग्लोबली, और ये गवर्नमेंट भी सोनम वांगचुक को एक टाइम पे दे वर द बिगेस्ट पेट्रन्स ऑफ सोनम वांगचुक. लेकिन जब वही बंदा बैठ जाता है धरने पे टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, वो माइनिंग के अगेंस्ट में जब वॉइस आउट करते हैं, क्योंकि अगर लद्दाख में माइनिंग को नहीं रोका जाता तो किस तरह का डेविस्टेशन हो सकता है वो हम सब जानते हैं. लेकिन स्टिल द गवर्नमेंट वांट्स के उसके जो दोस्त भाई बंधु हैं उनका धंधा चलता रहे भाई, उनका धंधा मंदा नहीं होना चाहिए. तो उसके लिए भले ही आप अरावली को काट दो, आप लद्दाख में माइनिंग करा दो, आप जादूगुड़ा में वहाँ पे फैक्ट्रीज लगा दो जिसकी वजह से वहाँ की पानी पूरी कंटेमिनेट. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो द स्टोरी ऑफ जादूगुड़ा. आई ट्राई टू मेक अ स्टोरी ऑन इट. जिनको नहीं पता है, जादूगुड़ा इज वन सच प्लेस इन आवर कंट्री. अगर मैं इसका मैं डायरेक्ट पैरेलल अगर आपको बताऊं, देन इसका डायरेक्ट पैरेलल होता है विथ हिरोशिमा नागासाकी. Absolutely. What is happening with Sonam Wangchuk is worst thing in India. I totally agree that. उनका बेल प्ली भी, उसको भी I think 12th तक फिर से उसको वो कर दिया गया है, उसकी हियरिंग को डिले कर दी गई है, डेटर कर दिया गया है. 12 तारीख को फिर से हियरिंग है. We are hopeful, the entire country is hopeful कि सोनम वांगचुक को बेल मिल जाएगा and he will be out. जब आप राम रहीम जैसे कन्विक्टेड क्रिमिनल को, आशा राम बापू जैसे कन्विक्टेड क्रिमिनल को बार बार पैरोल दे सकते हो, बेल दे सकते हो, देन व्हाई नॉट द एनवायरमेंटलिस्ट हु हैज डन सो मच फॉर द कंट्री, बिकॉज ही इज रेजिंग हिज वॉइस. एब्सोल्युटली you cannot. So that is the sad state of affairs. जैसे मैं बोल रही थी, this is the sad state of affairs that we are in. So ये थी हमारी मशीनरीज जो हमारी कुछ मशीनरीज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे पास अवेलेबल है, जिसपे धीरे धीरे इफ देयर इज अ डिसेंट देन देयर इज अ कर्व.
कोई अमेंडमेंट ले आओ किसी पर्टिकुलर एक्ट में, या फिर कोई नया एक्ट लेके आ जाओ, राइट टू इंफॉर्मेशन पे कर्ब्स लगा दो. There are so many things that our country is facing today, and somewhere we are also blithely ignorant about कि मेरे आसपास क्या हो रहा है. That's very unfortunate. And I'll tell you a very practical thing. Without taking anybody's name, I'll give you a reference of something that just recently happened with me. मैं अपने एक दोस्त से बात कर रही थी ओवर अ फोन कॉल. हम जिस बहुत दिनों बाद एक दूसरे से बात कर रहे थे, एंड देन सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट, दोस्त तो नहीं कहूँगी, एन अक्वेंटेंस बाय द वे, जिसे मैं जानती हूँ, काम किया था हमने काफ़ी सालों पहले एक साथ. तो अचानक फ़ोन आता है, एंड वी वर जस्ट हैविंग अ कॉन्वर्जेशन, एंड जिस कॉन्वर्जेशन बातों बातों में द पर्सन समहाउ हैज़ फिगर्ड आउट दैट आई एम नाउ रनिंग अ यूट्यूब चैनल एंड ऑल ऑफ दैट. तो बातों बातों में द थिंग दैट हैड कम आउट फ्रॉम द पर्सन वाज कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब इट्स ओके, मेरा सब कुछ ठीक है, दैट इज़ व्हाट मैटर्स टू मी. बाकी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है. आई एम एनी वेज एंटी गवर्नमेंट इज़ नॉट अ सोल्यूशन. आई मीन कोई भी गवर्नमेंट है, आप ब्लाइंडली एंटी गवर्नमेंट नहीं बन सकते हो. दैट्स नॉट द पॉइंट, राइट? द पॉइंट इज आस्किंग क्वेश्चंस टू द गवर्नमेंट, आस्किंग राइट क्वेश्चंस टू द गवर्नमेंट, दैट इज द पॉइंट. और अगर आस्किंग क्वेश्चन को एंटी गवर्नमेंट का तकमा लग जाए, देन दैट इज इन इटसेल्फ द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी. Will 51 मिनट्स हो गए इस लाइव को. I'll try to wrap it up quickly. I know it's a Sunday night. कल बहुत जन को काम पे जाना है, and I can go on, but I'll keep it short. I need to end this live in next 8 minutes ताकि आप सबको भी थोड़ा सा फैमिली टाइम मिले, और जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं इस पे भी थोड़ा सा डिस्कस करिए, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा इस पे तवज्जो दीजिए. These are very important things. आज प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं आपको, बट देयर आर प्रॉब्लम्स. ठीक है, हमको महसूस नहीं हो रहा है, राइट? तो महसूस होने तक वेट मत करिए. उससे पहले जो आपके कैपेबिलिटी में है, जो आपके एहतियात में है, उसको करने की कोशिश करिए. ओके, क्विकली मूविंग ऑन. अगर मैं टेंशन्स जो द डिसेंट के बारे में अगर बात करूं, तो इसके चलते हमें काफ़ी सारे टेंशन्स भी इन द पास्ट फ्यू ईयर्स देखने को मिली है, जिसमें से सबसे पहला है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAA प्रोटेस्ट, जो 2019 में देखने को मिला था. वहाँ पे भी प्रोटेस्ट के चलते काफ़ी सारी अरेस्ट हुई थी, एंड आई एम श्योर बाय नाउ यू कैन रिलेट सम ऑफ द नेम्स दैट आई हैड टेकन जस्ट अ फ्यू minutes ago. Farmer protest जो 2020 से 2021 तक हुआ, that was also a dissent, right? उसके ऊपर भी किस तरह से कर्ब्स लगाई गई, किस तरह से उसको हैंडल किया गवर्नमेंट ने, that was a miserable failure. थर्ड इज कश्मीर एंड रीजनल रिस्ट्रिक्शंस, जहां हमने बात की. इसके बाद मणिपुर, राइट? सो मेनी थिंग्स दैट जहां पे आवाज लोग उठाते हैं, तो आपके लिए there is it's like your fate is almost decided. अगर आप सवाल पूछते हो तो वो फ्रीडम आपके पास कब तक रहेगी इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, लेकिन आप फ्रीली सांस कब तक ले पाओगे इज द बिगेस्ट क्वेश्चन. सवाल पूछोगे तो आपके लिए जेल वेट कर रहा है, दैट शुड नॉट बी द सोल्यूशन, राइट? सवाल पूछना इज नॉट एंटी गवर्नमेंट, लेकिन हमने बिना सवाल पूछ के सरकार को वो आदत डाल दी है कि नाउ दे आर एट देयर फ्री विल. ओके, इसका अगर मैं पैरेलल ड्रॉ करूँ, जो हमारे कंट्री में जो स्टेट है और जो रीजनल, मैंने आपको 2-3 डिस्ट्रेस्ड या फिर अनरेस्ट गिनाई अभी, उसके साथ में अगर पैरेलल ड्रॉ करूँ, तो ग्लोबली ऐसा हमको तब देखने को मिला था. कब? जब इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के अगेंस्ट there was voice being raised in Hungary. Then Turkey में 2016 में भी प्रोटेस्ट हुआ था, which was against the government. Poland, Brazil, US में भी different trajectories हैं, जो ये दिखाती है कि किस तरह से वहाँ के लोग they are vocal about the government का जो भी उनको दिखता है, they feel that the government is being unfair, वो सवाल पूछते हैं. Even अगर हम आज यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन माय रीसेंट एपिसोड जो आज ही सुबह रिलीज हुआ है, विच इज़ ऑन द रेने गुड किलिंग केस, जिनको ICE के रेड के दौरान गोली मार के ICE के पुलिस ऑफिसर्स ने मार दिया.
Rene was a citizen of the United States of America. She was not an immigrant. She was very much a citizen of the country. She was born in the US. उनको रेड के दौरान मार दिया जाता है. इट वॉज एन एब्सोल्यूट डिस्प्ले ऑफ ब्रेजन पावर प्ले, ब्रेजन सुप्रीमेसी ऑफ द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन. लेकिन उसके खिलाफ ना सिर्फ मिनेसोटा नहीं, आई एम सॉरी, मियानापोलिस के मेयर ने, जेकब फ्रे ने वॉइस आउट किया, बल्कि न्यूयॉर्क के मेयर जोरान ममदानी ने भी वॉइस आउट किया, राइट? तो वहाँ के लोग और वहाँ के सिटीजन्स भी विजिल मार्च कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं रेने के अगेंस्ट. एंड रेने किलिंग इट हैज ब्रोकन ऑल द बैरियर्स. ये हो रहा था. आईसी का जो अट्रॉसिटी है ये आज का नहीं है, रेने के साथ अकेला केस नहीं है, ये कई सालों से चल रहा है. दिस इज एन एजेंडा बाय द ट्रम्प गवर्नमेंट. लेकिन इसके खिलाफ लोग वहां पे आवाज उठा रहे हैं. सरकार को अकाउंटेबिलिटी मांगने के लिए दो बार नहीं हिचकिचाते वहां के लोग. दे हैव if I talk about the Constitution of the United States of America, it's a democratic republic, right? तो वहाँ पे अगर लोग सवाल उठा सकते हैं, वहाँ के लीडर्स अगर सवाल उठा सकते हैं, लोकल लीडर्स और स्टेट लीडर्स, if they can ask questions, why are we failing being such, being world's largest democracy? Why and where are we failing? हमने सवाल पूछना क्यों बंद कर दिया है? और सवाल पूछने के लिए शायद अब स्पेस, वो जोन भी धीरे धीरे कम होती इसलिए जा रही है क्योंकि हमारे अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए 50 और चीजें हो रही हैं. अभी रिसेंटली दिल्ली में आई थिंक गुरु गोविंद सिंह के बर्थडे को बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया. ये नैरेटिव चला कि हिंदू एंड सिख आर लाइक द टू सन्स फ्रॉम द सेम मदर, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं हम लोगों को ऐसी स्टोरी टेलिंग्स की आदत पड़ चुकी है, हम लोगों को ऐसे जुमलों की आदत पड़ चुकी है. हम से ना ये सोच लेते कि सब चंगा नहीं सी. आंख खोल के देखिए भाई, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है. लुक एट द जीडीपी, लुक एट द इन्फ्लेशन रेट. अभी जो न्यू लेबर लॉज आ रही हैं, मेरा और एक एपिसोड आने वाला है वेयर आई हैव इंटरव्यूड एन एक्चुअल गिग वर्कर. ये मैं एपिसोड रिलीज करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट आई अर्ज ऑल ऑफ यू टू वॉच दैट एपिसोड. आपको पता चल जाएगा कि हमारी इकोनॉमी की आज क्या हालत है. इंडिया में एवरेज इनकम इज नॉट मोर देन 15 to 20,000 पर हाउस होल्ड पर पर्सन. और ये मैं बता रही हूं फॉर मोर देन 80% ऑफ द पॉप, 80 क्या उससे भी ज्यादा. इंडिया में आज ये जो 100 करोड़ प्लस जो हमारी पॉपुलेशन है, इनमें से सिर्फ 1 से 2% ऐसे हैं who sustain a high standard of living, who can maintain that, who can buy all the luxury goods in our country. Manufacturing ठप है. मेड इन इंडिया इज अ फ्लॉप प्रोजेक्ट, बट इसको रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट क्या करे? चलो ठीक है, आपका प्रोजेक्ट मेड इन इंडिया वॉज नॉट अ बैड प्रोजेक्ट. It was a great initiative by our Indian government. लेकिन वो फेल इस मिजरेबली जब हो जाती है, उसको रिवाइव करने की किसी तरह की कोशिश नहीं की गई, बल्कि ये कर दिया गया कि हमारा अटेंशन वहां से बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया गया. वी हैड too many other things to be entertained about. Reality check is very important in our country. So that is one thing that I'm going to end this live for tonight with, the reality check. आपके आसपास भी बहुत कुछ होता है, ठीक है. एट अ लोकल लेवल, एट अ स्टेट लेवल भी बहुत कुछ होता है जिसको रिमेडिएट करने के लिए एज अ वोटिंग सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, और एज अ लेजिटिमेट सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, आप बहुत कुछ कर सकते हैं. कुछ नहीं तो कम से कम आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं. सो प्लीज आस्क क्वेश्चंस, सवाल पूछिए, और प्लीज फैक्ट चेक करिए. व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पे ध्यान मत दीजिए, सब चंगा नहीं है. आंखें खोल के देखिए. जीडीपी हैज गॉन डाउन, इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है. करेंसी, हमारी इंडिया की जो करेंसी है, लेट मी टेल यू, आज आपको शायद नहीं पता होगा, टॉकिंग 70 to 80%, 80 ऑफ आवर जीडीपी. यस, अगर आपको नहीं पता है, ईरान में जो प्रोटेस्ट चल रहा है इस वक्त, दैट इज बिकॉज ऑफ द हाई इन्फ्लेशन.
वहां के लोग सड़कों पे उतर आए हैं बिकॉज दे वांट अ सोल्यूशन। उनको दे आर बीइंग वोकल अबाउट द इन्फ्लेशन। वहां की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो लाइफस्टाइल पे जो उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी इन्फ्लेशन के बारे में शायद हमने इतना ध्यान नहीं दिया है। करेंसी की बात करूं अगर, तो जो अभी हमारे करेंसी का जो रेट है, उसको डॉलर के साथ कंपेयर करके ये बताया जा रहा है कि आप जब बाहर जा रहे हो, सामान खरीद रहे हो, तो आप देखो आप कितने प्रॉफिट में रहते हो। कितने लोग इंडिया में, कितने लोग हर 2 साल, हर एक, चलो ठीक है 2 साल छोड़ दो, हर 1 साल में कितने लोग इंडिया से बाहर घूमने जाते हैं। और हम जो इतना बोस्ट करते हैं ना, हमारी करेंसी अभी इट्स मैचिंग द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, रियलिटी चेक, इट इज नॉट मैचिंग द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। काफी जगहों पे हमारा जो करेंसी है उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता। इंडियन मीडिया ग्लोबल रेटिंग इज इम्प्रूव्ड फ्रॉम 159 to 151. Okay, if makes you happy, then I think we have a bigger question. 159 to 151 is not a significant jump. We are still in the lower pedestal. So that is something that we need to voice out against. Let's not be happy with this smaller. Let's not start celebrating too early is what I would like to say. जब GDP की बात आई तो anyway, let me not, that's again going to be controversial. Let me not get into that. But talking about the currency, talking about the inflation, talking about unemployment in our country, gig workers की जो होड़ लगी है, I have seen it. People who have attained the retirable age, आज वो गिग इकोनॉमी में काम कर रहे हैं। क्या जरूरत पड़ती है एक 60+ ईयर के सिटीजन को इस देश में कि रिटायरमेंट के बाद भी उनको काम करना पड़ रहा है। इट इज नॉट मियर एंगेजमेंट, लेट मी टेल यू, इट इज नॉट मियर एंगेजमेंट। प्लीज डू वॉच माई अपकमिंग एपिसोड। इट सॉर्ट ऑफ इज एन आई ओपनर कि हमारी इकोनॉमी की क्या हालत है, किस तरह से गिग इकोनॉमी में जो काम करते हैं, किस तरह की एक्सप्लॉयटेशन को उनको फेस करना पड़ता है। यू हैव नो आइडिया, लेट मी टेल यू दैट। सुनने में अच्छा लगता है गिग इकोनॉमी, महीने का इतना कमा लेते हैं, बट उतना कमाने के पीछे जो हार्डवर्क, जो इट्स नॉट हार्डवर्क, इट्स शियर एक्सप्लॉयटेशन, और जो दिखाते हैं वर्सेस जो मिलता है, उसमें there's a hell and heaven difference between the two numbers. It's a sad reality of our country. अगर गिग इकोनॉमी में बढ़ोतरी हो रही है, इसका मतलब there is severe unemployment that this country is grappling with. Think about these things. I'll leave you with the food for thought. ये कुछ बहुत ही important मुद्दे हैं हमारे देश में। Unemployment, inflation, GDP, और कितने गिनाऊं आपको, और भी हैं। बट एजुकेशन पे जिस तरह की अभी मार पड़ी है, राइट, इन सब के बारे में सोचना ज़रूरी है। तो इन सब के बारे में सोचिए, सरकार से सवाल पूछिए। सवाल पूछना आपका हक है। और मेरे वीडियोस को ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी बुलंद आवाज़ बनने में मेरी मदद करिए। लाइव पे हर संडे ज्वाइन करिए और मेरे वीडियोस को और लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करिए और कमेंट भी करिए, क्योंकि वी थ्राइव ऑन योर कमेंट्स। I'll see you next Sunday, same time, 8 p.m. Indian Standard Time. I'll let you know. Most likely we'll have the live. There is no plan for cancellation. क्योंकि वो festive week है, मुझे पता नहीं आप लोग join कर पाओगे या नहीं, but I will come live. And I hope that you all will join me next Sunday, 8 p.m. Indian Standard Time, only on Coffee Commerce और कहानियाँ, The Sunday Live. Thank you very much for being wonderful audience tonight. See you all next week. Bye now.